Market Mantra. Market Mantra. Market Mantra. Market Mantra. Market Mantra. Market Mantra. Welcome to this edition of Market Mantra, in which we give you a complete update on the economic, business and stock market news of the day. I'm Arjun Chaudhary and with me is my co-anchor in Hindi, Amit Goyal. नमस्कार, मार्केट मंत्र कार्यक्रम में आपका स्वागत है। आज के अंक में देश विदेश की आर्थिक गतिविधियों के साथ साथ शेयर बाजार की हलचल पर एक नजर डालेंगे और चर्चा करेंगे। चर्चा के लिए आज हमारे साथ ऑनलाइन मौजूद रहेंगे वरिष्ठ आर्थिक पत्रकार पुनीत जैन। पुनीत, कार्यक्रम में आपका स्वागत है। धन्यवाद अमित। सबसे पहले एक नजर आज की आर्थिक सुर्खियों पर, तो अंग्रेजी में हेडलाइंस अर्जुन से। RBI maintains status quo on key policy rates, decides to continue accommodative stance. Benchmark domestic stocks logged modest gains, rising for the fifth straight session, hit fresh record highs, and Brent crude prices rise towards $60 a barrel. आर्थिक सुर्खियों में, रिजर्व बैंक ने नीतिगत दरों में कोई बदलाव नहीं किया, साथ ही सहयोगात्मक रुख बनाए रखने का निर्णय लिया। लगातार पांचवें कारोबारी सत्र में घरेलू शेयर बाजार में तेजी का दौर, सूचकांक नए रिकॉर्ड स्तर पर दर्ज और ब्रेंट क्रूड के वायदा भाव बढ़त से $60 प्रति बैरल के स्तर तक पहुंचे। In our top story, the Reserve Bank of India, RBI, today decided to continue its accommodative stance on monetary policy. In the sixth bi-monthly monetary policy review of the current fiscal, RBI maintains status quo on the key policy rates. The repo rate is kept unchanged at 4% and the reverse repo rate at 3.35%. Announcing the policy review decision, RBI Governor Shaktikanta Das said the accommodative stance will continue as long as necessary, at least through the current financial year and into the next year, to revive growth and mitigate the impact of COVID-19. RBI Governor said GDP growth is projected at 10.5% in the financial year 2021 to 2022. He said projection of CPI inflation has been revised to 5.2% for the fourth quarter of the current financial year. Mr. Das added that the year 2020 tested the capabilities and endurance. 2021 is setting the stage for a new economic era in the course of our history. Shaktikanta Das said that the normalization is pick up pace in India as fears of a second wave of the coronavirus abate. He pointed out that consumer confidence is reviving and business expectations of manufacturing, services and infrastructure remain upbeat. The movement of goods and people and domestic trading activities are growing at a robust pace. And on this, we are joined by economic expert Puneet Jain. Puneet, a very warm welcome to you on Market Mantra. Thank you, Arjun. Puneet, we were discussing about the MPC decision to maintain its accommodative stance, which simply means that the repo rate, reverse repo rate, the bank rate, the marginal standing facility rate, all has been remain unchanged. But the key question here is, what about transmission of the low interest rates to the consumer or to the business when it comes to accessing loans to buy something? And how do you improve consumer confidence unless and until financial access at a low interest rate is not possible? So, Arjun, if you look at the RBI's policy today, I think it is along expected lines, because nobody expected interest rates to be hiked or liquidity to be reined in. So all these things were along expected lines. I think what is important in this is that RBI has maintained the fact that they will keep the so-called easy money policy in place at least for the foreseeable future. And there were these fears that high inflation in the last few months might force RBI to reduce liquidity a little bit or to raise rates. I think those fears can be put on the back burner, at least for the time being. Puneet, my question was specific to transmission. Arjun, I'm coming to that. First, you must understand the overall framework within which RBI is working. If you look at the transmission of rates has been happening. Housing loans are now available at 6.7%, which is fairly low. In fact, it's historically low levels. And interest rates have been trending lower. They don't go down overnight because of the existing loans that banks have and the administrative expenses they have. But the fact is in India that transmission has been happening because there's large liquidity surplus now with the banks. Banks are sitting on something like 6 lakh crores in terms of surplus liquidity.
So therefore, it is in their own interest that they have to lend. However, we must understand that the bank, the corporate sector must be willing to take those loans. Right now, the problem is basically the corporate sector is not willing to take loans, and credit growth has been very muted, about in the range of about 4 to 5%. We need to push this credit growth to 7, 8, 9%, maybe double-digit growth, which SBI chairman has talked about. And only then we can talk about transmission of rates, because right now there's surplus liquidity with banking system, and they will transmit rates. So these things are tied in with the overall framework of monetary policy. And we must understand that why is RBI coming out with this policy? RBI has come out with this policy to support economic growth. Because government has come out with a budget which has a fiscal policy which supports growth. RBI has a monetary policy which is not supporting growth, and along with capital expenditure on infrastructure, all these things together should be able to push growth higher, which means higher corporate borrowings, and then the effect of lower interest rates or transmission of rates, then it will that will be the real factor. पुनीत, जिस तरह से आपने जिक्र किया कि रिजर्व बैंक और सरकार दोनों इस बात की कोशिश कर रही हैं कि कहीं ना कहीं आर्थिक जो विकास की गति है उसको बढ़ाया जाए, और रिजर्व बैंक ने खुद भी माना है, जो उन्होंने अपना मुद्रास्फीति का मतलब महंगाई दर का अनुमान था वो 5.8% से घटा के 5.2% कर दिया है। अब हम क्या इसके सीधे सीधे तौर पर ये माने कि हमारे जो रिटेल लोन्स हैं उसमें अभी कुछ और छूट मिलने की या कुछ और गुंजाइश मिलने की संभावना जग जाती है आज के दौर में? दूसरा, एक इस सारी बातों में एक जो चीज और भी दबी हुई थी, जो एमएसएमई के लिए जो नेट डिमांड और टाइम लायबिलिटीज की कैलकुलेशंस में भी जो एग्जिस्टिंग लोन्स थे उनको भी आरबीआई ने बैंकों को ये अलाउ किया है कि वो अपने इस तरीके के लोनों को अपने नेट सीआरआर कैलकुलेशन में से घटा दें। इस बात के फौरी तौर पे व्यापार जगत के लिए या उद्योग जगत के लिए क्या मायने हैं? देखिए, हमें जो जैसे टीएलटीआरओ की हम बात करें या आपने जो नेट डिमांड एंड टाइम लायबिलिटीज की बात करी एमएसएमईज के लिए, तो जो रेगुलेटरी कैपिटल बैंक्स को मेंटेन करना पड़ता है, चाहे हम सीआरआर की बात करते हैं तो कैश रिजर्व रेशियो है, उतना कैश बैंक्स को अलग रखना पड़ता है। अभी वो नीचे उन्होंने रिड्यूस किया हुआ था आरबीआई ने। ये रेगुलेटरी कैपिटल के हिस्से हैं। यदि हम आरबीआई इसको रिलीज करता है, एमएसएमई के लिए रिलीज करता है, तो बैंक इंटरेस्ट रेट आगे कम कर सकते हैं, बिकॉज उनको रेगुलेटरी कैपिटल कम रखना पड़ता है। तो ये सब एक मैं कहूंगा माइक्रो इंटरवेंशंस हैं टारगेटेड असिस्टेंस के लिए। तो एमएसएमईज को ये बेनिफिट दिया गया। इसी तरह से एनबीएफसीज के लिए, क्योंकि उनको अभी तक जो एलटीआरओ था उसके अंदर उनको बेनिफिट नहीं मिलता था बैंक्स को, तो उन्होंने कहा ठीक है आप एनबीएफसीज को भी इंक्लूड कर लीजिए, जिसको हम टारगेटेड लॉन्ग टर्म रेपो ऑपरेशंस टीएलटीआरओ कहते हैं। तो अब बैंक्स को बेनिफिट मिलेगा तो वो उस बेनिफिट को एनबीएफसी को पास ऑन कर पाएंगे। इसी तरह से एमएसएमईज के लिए भी टीएलटीआरओ पहले उन्होंने अलाउ किया था। तो इस जो इकोनॉमी के कुछ सेक्शंस हैं जिनको मदद की जरूरत है लिक्विडिटी की फॉर्म में या एनहांस्ड क्रेडिट की फॉर्म में, तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया वो समय समय पर ऐसी इंटरवेंशन करता रहता है। और यदि आप देखें जो अभी डेटा हमारे सामने आ रहा है क्रेडिट ग्रोथ का, सारा ग्रोथ जो क्रेडिट ग्रोथ है या तो वो रिटेल लोन्स में आई है पिछले दिनों में या वो एमएसएमई सेगमेंट में आई है। इनफैक्ट लार्ज कॉर्पोरेट लोन्स में अभी भी ग्रोथ नहीं है और वहां डिमांड नहीं है, और ज्यादातर ग्रोथ या तो मीडियम जो बिजनेसेस हैं उन्होंने करी है, बिकॉज वहां पर कुछ बेनिफिट था बैंक्स को क्रेडिट एनहांसमेंट का बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, कुछ गारंटीड लोन्स थे। तो इस प्रकार से आप देखें तो जो सेगमेंटेड लोन्स हैं जो रिक्वायरमेंट है, तो रिटेल लोन्स और एमएसएमई लोन्स में ही अभी हम ग्रोथ देख रहे हैं। तो क्या ये माना जाए कि अभी भी इन क्षेत्रों के लिए रिजर्व बैंक के पास और मौका है कि वो इन लोन को जो इस क्षेत्र के लोगों के लिए उनको और सस्ता कर सकता है? और जो मैंने बात पहले भी पूछी थी कि क्या हम ये भी माने कि जो रिटेल लोन है जिस तरह के ऑटो लोन है, या उसमें भी अभी कुछ और छूट की गुंजाइश की या कुछ और संभावना बन सकती है? अमित, मुझे नहीं लगता कि ये पॉसिबल है कि अब यहाँ से इंटरेस्ट रेट्स बहुत ज्यादा कम होंगे। आज मैं आपको बताता हूँ, जब आरबीआई की पॉलिसी आई उसके बाद जो गवर्नमेंट बॉन्ड्स हैं उसके अंदर यील्ड जो थी वो काफी बढ़ गई थी। 6.15 जो 10 ईयर बॉन्ड यील्ड है वो पहुंच गई थी 6.07 से। तो मार्केट जो है वो ये बता रही है कि अब इंटरेस्ट रेट यहाँ से नीचे जाने वाले नहीं है। और गवर्नमेंट बॉन्ड्स पे यदि आप 6.07 या 6.10 10 ईयर बॉन्ड पे यील्ड आती है तो ये बात साफ है कि आने वाले समय में इंटरेस्ट रेट्स नीचे नहीं आने वाले। तो मुझे लगता है ये उम्मीद रखना कि अब यहाँ से लोन्स और सस्ते होंगे, शायद ये एक
वैलिड एजम्पशन नहीं होगी। मुझे नहीं लगता कि यहाँ से इंटरेस्ट रेट कट करने का कोई स्कोप है बहुत ज्यादा आरबीआई के पास। यहाँ से तो क्रेडिट ग्रोथ यदि पिकअप करती है, और देखिए मैं आपको बताता हूँ कि आने वाले समय में आप देखेंगे कि इन्फ्लेशन के ऊपर प्रेशर रहेगा। चाहे आरबीआई ने अपना इन्फ्लेशन टारगेट कम किया है, उसके बावजूद ये बात, क्योंकि सभी कमोडिटीज में अब इन्फ्लेशन चल रहा है, तो मुझे लगता है कि आने वाले समय में इन्फ्लेशन ऊपर की तरफ ट्रेंड करेगा। तो कुल मिलाकर यदि आप देखिए मॉनेटरी पॉलिसी, इन्फ्लेशन पिक्चर, मुझे नहीं लगता कि इंटरेस्ट रेट्स में यहाँ पर कटौती होने की अब स्कोप है। कुछ एक चीजें थी जिस तरह से रॉ मेटल में खासतौर पे अगर मेटल क्षेत्र को देखें तो उसमें बहुत ज्यादा तेजी दर्ज हुई थी पिछले कुछ दिनों। हालांकि सरकार ने कोशिश करी थी कि उन पे जो इम्पोर्ट ड्यूटी है और उस तरह से कुछ चीजों को उसमें पे कंट्रोल किया जाए, नियंत्रण किया जाए, जिससे कि घरेलू क्षेत्र को भी फायदा मिले और खासतौर पे रॉ मटेरियल की कीमतें भी कम हों। लेकिन इसके बावजूद भी अगर आप कह रहे हैं कि क्रेडिट ग्रोथ होने की संभावनाएं अगर कम है, तो क्या ये माना जाए कि बाजार में पर्याप्त लिक्विडिटी तरलता है और उससे अब हमको जो दोनों के बीच में संतुलन बैठाने की रिजर्व बैंक की कवायद है कि महंगाई भी ना बढ़े और जो उद्योग जगत है, चाहे वो एमएसएमई हो, चाहे उद्योग जगत पूरा बड़ा उद्योग जगत हो, उन दोनों के लिए जो मौद्रिक जरूरतें हैं वो पूरी हो सकें। अमित, देखिए हमेशा सेंट्रल बैंक्स के लिए ये बहुत बड़ा चैलेंज रहता है। जैसे ही वो लिक्विडिटी को बढ़ाते हैं, वैसे ही हम देखते हैं कि इन्फ्लेशन आना शुरू हो जाता है और फिर उनको लिक्विडिटी कम करनी पड़ती है। तो ये दोनों मैं कहूंगा दोनों बिल्कुल ऑपोजिट पहलू हैं एक ही चीज के, लिक्विडिटी और इन्फ्लेशन और डिमांड जो है। और इन्फ्लेशन यदि आती है तो डेफिनेटली डिमांड उससे बढ़ती है और उससे ग्रोथ आती है वर्ल्ड इकोनॉमी में। लेकिन नेचुरली इट अफेक्ट सर्टन सेक्शन ऑफ सोसाइटी। जो पुअर सेक्शन है इन्फ्लेशन से उनको तकलीफ होती है, नुकसान होता है। तो एक ये फाइन बैलेंसिंग एक्ट रहा है शुरू से ही कि आप लिक्विडिटी कितनी बढ़ाएंगे, उसका इन्फ्लेशन पे क्या असर होगा, ग्रोथ पे क्या असर होगा, और हम उसी चैलेंज को भी फेस कर रहे हैं। यदि हम ग्रोथ को आगे पुश करते हैं, जो अभी कर रही है सरकार भी कर रही है और आरबीआई भी कर रहा है, इकोनॉमिक ग्रोथ को हम पुश करेंगे तो इन्फ्लेशन का चैलेंज हमारे सामने रहने वाला ही है। तो इसको देखते हुए मुझे लगता है कि सरकार जो कुछ कदम उठाती है, कस्टम ड्यूटी कम करी है कुछ आइटम्स पर, उसके बावजूद मुझे लगता है इन्फ्लेशन इज गोइंग टू रिमेन अ चैलेंज फॉर द इकोनॉमी। Puneet, my question is on gilt accounts for retail investors. What is the impact on public finance, the government's ability to sell GSEC directly to the retail investor and raise public finance through online access to the GSEC market? Earlier, you had to go through a agent broker in Bombay in order to buy RBI bonds. So how do you see this kind of traction benefiting both the investor and the government, and at the same time making the bond market competitive? See, right now the system is that government securities are bought by large institutions. So retail investors cannot buy them directly, although they can buy them indirectly through the market. Right now they are listed on the stock markets, but you can't buy them directly from RBI. What RBI has today said is that they will allow retail investors to start buying government securities directly from RBI, which will bring down their cost a little bit. And see, right now, like I said earlier, the yields on government securities are about 6%. And if you look at the FDs, the fixed deposit in banks, they are also about 6% around about for about a 1 year period. So I think going forward, there is a large possibility that some retail deposits will shift to government securities, because there the yields are about comparable yields and liquidity is much higher compared to fixed deposits. So my own guess is that government is kind of developing this retail market for government securities. In fact, in developed economies, in America, in Europe, retail investors can buy government securities directly from the market. In India, that has not taken off so far. We have mutual funds which buy government securities and then redistribute it to the investors. But direct investment by investors in government securities is very, very limited in India right now. I think it's a very good step. And going forward, probably government could look at raising money from this retail segment in a big way in future. RBI has announced certain measures of protection of common bank account holders in today's monetary policy statement. It includes setting up of a 24/7 helpline for digital payment services, integrated ombudsman scheme, CTS across all bank branches, and allowing retail investors to open gilt accounts with the Reserve Bank of India. पुनीत, बहुत संक्षेप में, जो रिजर्व बैंक ने आम जनता के लिए इस तरह के कदम उठाए हैं, क्या भरोसा बहाली करने का ही ये काम है, या इसके साथ साथ कहीं ना कहीं इसकी बहुत ज्यादा जरूरत महसूस की जा रही थी?
देखिए मुझे लगता है कि बहुत जरूरत है, क्योंकि काफी एक तो कुछ रेगुलेशन तो बहुत पुरानी थी और आज मॉडर्न एरा में कुछ जरूरत है कि उनको रिवाइज करें। जैसे हम बैंक डिपॉजिट गारंटीज की बात करते थे, जो तो वो बहुत अमाउंट्स बहुत कम थे, उनको जरूरत है कि हम उन अमाउंट्स को ज्यादा करें। तो रिटेल इन्वेस्टर्स जो बैंकिंग में आ रहे हैं, और देखिए बैंकिंग का जो दायरा है और बैंकिंग का जो साइज है वो बहुत बड़ा होता जा रहा है कंपेयर टू 10 years बैक। तो मुझे लगता है ये बहुत जरूरी कदम है। वित्त मंत्रालय ने आज राजस्व घाटा अनुदान की 11वीं मासिक किस्त जारी कर दी। इसके तहत 14 राज्यों को लगभग 6,195 करोड़ रुपए की राशि जारी की गई। अनुदान पाने वाले राज्यों में आंध्र प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, असम, केरल, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, पंजाब, सिक्किम, तमिलनाडु, त्रिपुरा, उत्तराखंड और पश्चिम बंगाल शामिल हैं। 15वें वित्त आयोग की सिफारिशों के आधार पर चालू वित्त वर्ष के दौरान अब तक राज्यों को 68,145 करोड़ रुपए अनुदान के रूप में दिए जा चुके हैं। And let's have a look at the stock market now. Benchmark stocks today logged modest gains to hit fresh record highs. The key domestic indices climbed for the fifth straight session amid positive global market cues. Sensex closed above 50,700 mark, while the Nifty settled above 14,900 level. Sensex gained 117 points, 0.23% up at 50,732. NSE Nifty also rose by 29 points or 0.19% to trade at 14,924. On the other hand, the broader market and the BSE declined. BSE Mid Cap Index fell 0.93% and the BSE Small Cap Index slipped 0.28%. लगातार 5वें कारोबारी सत्र में घरेलू शेयर बाजार में आज तेजी का दौर रहा। सूचकांक नए रिकॉर्ड स्तर पर दर्ज हुए। कारोबार के दौरान सेंसेक्स 50,700 और निफ्टी 14,900 के स्तर के ऊपर रहे। बंबई शेयर बाजार का सेंसेक्स 0.3% की बढ़त से 117 अंक उछलकर 50,732 के स्तर पर बंद हुआ, जबकि नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी भी 0.2% की मजबूती से 29 अंक बढ़कर 14,924 के स्तर पर दर्ज हुआ। हालांकि बीएसई मिड कैप सूचकांक में 0.9% और स्मॉल कैप सूचकांक में 0.3% की गिरावट रही। Puneet, do tell us about the stock market performance today. Another gain that we are seeing, market capitalization has gone up, but specifically the PSU Bank Index went up by 3.6%. What's the future for those holding PSU Bank stocks, and what's the policy of the government backing this fundamental? So today's rally, of course, is a huge thing because the Nifty touched 15,000 level today, which is double of the bottom that we touched in March last year. So clearly, markets have been on a tear, and today's rally, in fact, was led by State Bank of India, which rose by about 11%, and this is the highest gain that SBI has made in last 30 years. Last time SBI rose by 11% in a day was in 1992. So, I mean, you can imagine, I mean, how fierce this rally is in PSU banks, particularly State Bank of India. And if you look at this week, in fact, this week we saw the index went up by go up by about 10-11%, which is the highest after April last year. So clearly, and not just in India. In fact, this is a global rally happening, and we are calling it the everything rally. Everything in the market is going up. So whether it is commodities or it is stocks or any risk asset that is going up, and only defensives like gold, they are coming down. So clearly, and this whole rally around the world is being fed by three things. One is, of course, more easy liquidity, which central banks are pumping into the market. Second is the government stimulus, which is now coming in. In the US also, they are very close to passing a $2 trillion stimulus package. In India, we have seen government increasing the government spending. And third factor is, which I think is really supportive, is higher corporate earnings. If you look at the corporate earnings calendar across the board, from automobiles, steel, I mean, practically all the companies have reported extremely good corporate results, and earnings are going higher. And I think all these things together are contributing to the current rally. पुनीत, वापस से उसी चीजों को मैं पूछूंगा जिस तरह से भी पिछले कुछ दिनों पहले रिजर्व बैंक के गवर्नर ने भी आशंका जताई थी कि जो बाजार में इतनी तेजी है, क्या इसके पीछे कोई स्पेकुलेशन है। एक ये जो आशंका है, ये अभी भी कितनी बलवान है एक विशेषज्ञ के तौर पर आपके लिए। दूसरी बात, जिस तरह से रॉ मटेरियल की, कच्चे धातुओं की और मेटल क्षेत्र की भी सारी चीजों की कीमतों में काफी तेज बढ़त हुई है, क्या उसका कहीं ना कहीं कुछ असर हमको कॉर्पोरेट रिजल्ट की जो चौथी तिमाही के नतीजे उस पर देखने को मिल सकता है? तो पहला सवाल आपका कि क्या इस पे स्पेकुलेटिव एलिमेंट है, तो डेफिनेटली मार्केट्स में देखिए स्पेकुलेशन हमेशा रहती ही है, क्योंकि कल क्या होगा। मार्केट्स आर बेस्ड ऑन व्हाट इज गोइंग टू हैपन टुमारो, एंड पीपल आर जस्ट बेटिंग ऑन इट। तो लोग
उम्मीद रखते हैं कि आने वाले समय में इकोनॉमिक ग्रोथ होगी, कॉर्पोरेट प्रॉफिट्स और बढ़ेंगे। ऑलरेडी बहुत अच्छे नंबर्स आ रहे हैं, लेकिन ऐसा लगता है कि आने वाले कम से कम 2 या 3 तिमाही तक ये जो कॉर्पोरेट अर्निंग्स हैं ये काफी तेजी से बढ़ती रहेंगी, और इसी को लेकर मार्केट में स्पेकुलेशन कह सकते हैं आप और इन्वेस्टमेंट कह सकते हैं, तो वो चल रही है। पर डेफिनेटली कभी ये बबल बन सकता है, वेरी डिफिकल्ट टू प्रेडिक्ट द मार्केट्स। तो मैं ये कहूंगा हाँ, इसमें डेफिनेटली इजी मनी है, लिक्विडिटी ज्यादा है, उसका एक कंट्रीब्यूशन है, पर कुछ हद तक इसमें कंट्रीब्यूशन फंडामेंटल्स का भी है। दूसरा सवाल था आपका कि जो रॉ मटेरियल प्राइसेस जो बढ़ते जा रहे हैं बहुत तेजी से, अभी हमने देखा है कि जैसे कार कंपनियों ने अपने दाम बढ़ाए और उसके बावजूद भी उनकी सेल्स जो थी वो काफी अच्छी रही। तो फिलहाल जो कंपनीज हैं वो रॉ मटेरियल प्राइसेस को पास ऑन कर पा रही है कंज्यूमर्स को। ये वो कब तक करती रहेंगी और किस लेवल पर जो इन्फ्लेशन है वो कंज्यूमर डिमांड को कम करेगा, ये अभी कहना मुश्किल है। पर मुझे लगता है कि अभी कुछ हेडरूम है, कुछ स्कोप है इन्फ्लेशन को एब्जॉर्ब करने के लिए। उसके बाद डेफिनेटली मुझे लगता है कि अगर बहुत ज्यादा इन्फ्लेशन होगा तो कॉर्पोरेट सेल्स में फर्क पड़ सकता है और उसी से ही कॉर्पोरेट प्रॉफिट को भी असर हो सकता है। अभी हाल ही में बजट में सरकार ने इंफ्रा सेक्टर पे, ढांचागत क्षेत्र में काफी बड़े पैमाने पे खर्च करने की घोषणा की थी। कितने उत्साहित हैं इन बातों से, जिससे कि ये विकास की जो गति है वो और जो भी प्रेजेंट लेवल पे है उससे भी ज्यादा तेज हमको आगे देखने को मिलेगी? देखिए, सरकार का जो इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर पे फोकस है वो बहुत ही अच्छा है, क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर में जब आप स्पेंड करते हैं तो उसका असर इकोनॉमी के सब सेगमेंट्स में पड़ता है। एम्प्लॉयमेंट भी मिलती है, जो दूसरी इंडस्ट्रीज हैं, सीमेंट है, स्टील है, ट्रांसपोर्टेशन है, ट्रक्स हैं, रेलवेज हैं, एविएशन है, सभी जो इकोनॉमी के सेगमेंट्स हैं उन सबको इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर से फायदा होता है। सरकार ने करीब 30% बजट के जो एलोकेशन है वो बढ़ाई है इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर पे। साथ में ही कुछ और प्रावधान किए, जैसे डेवलपमेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन उन्होंने बहुत जरूरी थी बनाई है वो। तो मुझे लगता है कि जो इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर स्पेंडिंग है उसका फायदा पूरी इकोनॉमी को मिलेगा। और कहीं भी यदि आप विश्व में देखें जहां भी इकोनॉमिक ग्रोथ आई है उसकी जो मूलभूत जो कारण रहा है वो इंफ्रास्ट्रक्चर, अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर वही इकोनॉमिक ग्रोथ को आगे बढ़ावा देता है। अंतर बैंकिंग मुद्रा बाजार में डॉलर के मुकाबले रुपया आज 3 पैसे की बढ़त से 72 रुपये 93 पैसे प्रति डॉलर के स्तर पर दर्ज हुआ। हालांकि डॉलर इंडेक्स 0.6% की गिरावट से 91.48 के स्तर पर दर्ज हुआ। पुनीत, बहुत संक्षेप में तकरीबन वही 72-73 रुपए के आसपास रुपया बना हुआ है। कितना स्वस्थ संकेत मानते हैं, या इसको भी कहीं ना कहीं आप इसमें भी रिजर्व बैंक की दखलंदाजी मानते हैं? अमित, देखिए मैं पहले भी इस प्रोग्राम पर ये बात कह चुका हूँ कि जो रूपी के फंडामेंटल्स हैं, यानी जो डेफिसिट्स हैं, करंट अकाउंट डेफिसिट है, ट्रेड डेफिसिट है, बैलेंस ऑफ पेमेंट्स है, ये फंडामेंटल बहुत स्ट्रांग है। तो और साथ ही $600 बिलियन के भारत के फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व हैं जो विश्व में चौथे या 5वें नंबर पे आते हैं अब। तो मुझे नहीं लगता कि कोई भी कारण है कोई फंडामेंटल वीकनेस का रूपी के अंदर। डेफिनेटली रूपी में स्ट्रेंथ आ सकती थी, रुपया अप्रिशिएट हो सकता था, लेकिन रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने एक पॉलिसी के तहत उसको मेंटेन करने की कोशिश करी है बाय बाइंग डॉलर्स फ्रॉम द मार्केट। मेरा अपना अंदाजा यह है कि आने वाले कई वर्षों तक, शायद 3-4 वर्षों तक, हम रुपये में कोई खास बदलाव नहीं देखेंगे और वो एक नैरो रेंज में 72-73 से लेकर 75 तक शायद वो ट्रेड करेगा। Puneet, very briefly, with rising commodity prices, as Amit had mentioned, and rising oil prices crossing $60 a barrel, isn't that going to impact the exchange rate on the rupee? Very briefly. So you're right. See, in normal course, I would say it would have affected because it causes you to spend dollars. However, we have $600 billion of huge reserves. So our requirement for importing gold or importing oil or importing commodities, that is not going to affect our ability to spend dollars because we already have huge reserves and we have a very comfortable current account surplus now. I think all these things are going to create a lot of cushion for the rupee as a currency. नजर डाल लेते हैं एशियाई शेयर बाजार पर। एशियाई सहित वैश्विक बाजारों में आज तेजी का दौर रहा। जापान का निक्केई 1.5%, दक्षिण कोरिया का कोस्पी 1.1% और हांगकांग का हैंगसेंग 0.6% की बढ़त से बंद हुआ। सिंगापुर का स्ट्रेट टाइम्स सूचकांक पूर्व स्तर पर बना रहा, जबकि चीन का शंघाई कंपोजिट सूचकांक में मामूली गिरावट रही। उधर यूरोपीय बाजारों के शुरुआती रुझानों में शेयर बढ़त के सीमित दायरे में नजर आए। लंदन, जर्मनी और फ्रांस के शेयर सूचकांक 0.4% से 1.1% तक की बढ़त के दायरे में रहे। And looking at the US market now, the Dow Jones Industrial Average and the S&P 500 both surged 1.1% and Nasdaq Composite Index climbed 1.3%. Moving on to the oil market now.
Oil today rose towards $60 a barrel on expectations that OPEC plus countries are committed to restraining global supplies even as the demand outlook improves. In intraday trade, Brent crude prices were trading around $59.50 per barrel, while WTI crude prices were around $56.90 per barrel. Puneet, we were discussing about commodity prices going up. Oil, of course, looking to go beyond $60 per barrel, but it's been artificially created by curbing supplies, especially by Saudi Arabia. How do you see this move continuing? And is the U.S. economy improving based on the labor market data and the corporate earnings, which would suggest that they will also demand supplies from the Middle East, from other parts of the world that will actually raise prices, not artificially, but normally? So, Arjun, there are two things which are really pushing oil prices higher. One is, of course, the reviving economy and higher demand for oil products across the world. Particularly, China has been importing oil in a very big way, legally and illegally. And the other factor is that the producers have restrained supplies. Now, my own sense, and of course, there is a general uptrend in all commodities right now, and oil is also participating in that rally. My own sense is that if you look at the fundamentals, if you look at the potential supply of oil available from the USA, from OPEC countries, from Russia, I think the supply far outstrips demand even in future. So clearly, while you may be able to rig these prices a bit higher in the short term, the truth is that in the longer term, they will not be able to keep prices higher because there is so much supply which is available and which will come onto the market in near future. That prices, my own sense is that oil prices will come down, and maybe in next 6 months, once this current euphoria is over, probably oil prices will come down. Fundamentals don't support such high prices. पुनीत, बहुत संक्षेप में जो वैश्विक शेयर बाजार हैं उनकी भी गति बहुत ही बेहतर रही है। भारतीय बाजारों की चर्चा हमने कर ली, लेकिन अगर वैश्विक बाजारों की बात भी देखें तो वहां पे ऐसे कौन से कारक हैं जिनसे इन तेजी को बल मिल रहा है? अमित, वही तीन कारण है। बेटर कॉर्पोरेट अर्निंग्स जो बेटर इकोनॉमिक ग्रोथ से आ रही है, इजी मनी अवेलेबल जो है, और गवर्नमेंट स्टिमुलस। यही तीन कारण हर जगह रिस्क ऑन रैली को चला रहे हैं। लेकिन आपने सही कहा, एक हद से ये मुझे लगता है कि एक बबल सा क्रिएट होगा, करेक्शन होगी उसके अंदर, तो ये स्मूथ राइड नहीं रहने वाली। आने वाले समय में आप देखेंगे इसमें काफी उतार चढ़ाव होंगे, काफी वॉलेटिलिटी रहेगी स्टॉक मार्केट में। ये कोई आसान नहीं होगा कि एक तरफा तेजी नहीं बनेगी। इसके अंदर आने वाले समय में काफी उतार चढ़ाव हो सकते हैं। मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज एमसीएक्स में आज सोना स्टैंडर्ड के वायदा भाव 375 रुपए की बढ़त से 47,090 रुपए प्रति 10 ग्राम के स्तर पर दर्ज हुए। चांदी भी 1,180 रुपए की मजबूती से 68,000 रुपए प्रति किलोग्राम के स्तर पर दर्ज हुई। उधर न्यूयॉर्क मर्केंटाइल एक्सचेंज में सोना बढ़त से $1,860 प्रति औंस के स्तर पर रहा, जबकि चांदी $26.70 प्रति औंस के स्तर पर दर्ज हुई। सोने में बहुत जो तेजी थी पिछले दिनों में काफी नरमाई देखी गई है, जब से कि शेयर बाजार की हलचल तेज हुई है। कितना मजबूत नजर आता है फिलहाल सोना? देखिए अमित, मुझे लगता है कि सोने की जो बहुत ही छोटी रेंज में ट्रेड करेगा काफी समय तक, क्योंकि जो एक सेफ हेवन अप्रोच या इन्वेस्टमेंट थी वो अब उसमें बात नहीं है। अब तो ये एक नॉर्मल कमोडिटी की तरह ट्रेड हो रहा है। मुझे कोई बहुत उम्मीद नहीं है कि बहुत तेजी या मंदी की, एक स्टेबल सा प्राइस जो करंट प्राइस है रुपए में यदि बात करें तो 47,000 से लेके 51,000-52,000 तक शायद इसकी रेंज रहेगी। Puneet, what's driving the price of silver? It has industrial usage, but the prices have been going up in the bullion market. Today, 68,000 rupees per kilogram. International market, it's $26 and 70 cents per ounce. So, apart from the speculative frenzy which was there last week because of the GameStop kind of frenzy there, silver, of course, had not risen a lot along with gold. Gold went up a lot and silver was lagging, and it has just done the catching up rally with gold. Again, I expect silver to remain stable in a very tight range. I don't see a very sharp rise in silver prices in the short term. पुनीत, कार्यक्रम में आने और चर्चा के लिए धन्यवाद। धन्यवाद। और अब चलते चलते एक नजर आज की आर्थिक सुर्खियों पर एक बार फिर। RBI maintains status quo on the key policy rates, decides to continue accommodative stance. Benchmark domestic stocks log modest gains, rising for the fifth straight session, hit fresh record highs, and Brent crude oil prices rise towards $60 a barrel. और श्रोताओं, हम आपको बता दें कि आकाशवाणी के चैनल पर आप मनी मैटर्स कार्यक्रम रोजाना दोपहर 3 बजे सुन सकते हैं, जिसमें भी बाजार की क्षणिक संभावनाएं के बारे में बताया जाता है। And that's it in this edition of Market Mantra. For now, goodbye. Market Mantra, Mantra.
Market Mantra.